اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ اب پاکستان انشاءاللہ غداروں سے اور ملک دشمن عناصر سے پاک ہونے جا رہا ہے۔ پوری طرح ریاست ایکشن میں آ چکی ہے، اس پہ بات کروں گا۔ اور کل کا پی ٹی آئی کا جلسہ کامیاب تھا یا ناکام تھا، اس پہ بات کروں گا۔ اپنے ہی شہر میں، اپنی ہی حکومت میں پی ٹی آئی بری طرح ناکام ہو رہی ہے۔ اس کے پیچھے کون کون سی وجوہات ہیں، اس پہ بات کروں گا۔ اور اس کے علاوہ جو باہر یوٹیوبر بیٹھے ہوئے فوج اور ملک کے خلاف کتے کی طرح بھونک رہے ہوتے ہیں، ان کو اب وطن واپس لانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس پہ بات کروں گا۔ اور پوری پی ٹی آئی کا نام ای سی ایل میں ڈال کے ملک سے باہر جانے پہ پابندی لگا دی گئی ہے، اس پہ بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے آ جائیں جناب کے کل کے جلسے پہ۔ کل پی ٹی آئی نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد اعلان کیا تھا کہ ہم جلسے میں جواب دیں گے۔ جلسہ پہلے انہوں نے رکھنا تھا پشاور میں، پھر وہاں سے انہوں نے کہا کہ بھائی بندہ تو کوئی نکلے گا نہیں، کیونکہ 13 سال کی ہماری کارکردگی 0/0 ہے، لہذا پھر اس کا انتخاب کیا گیا اس جگہ پہ کہ جو بالکل سینٹر ہے تیمر گرا کا اور لاکا غیر کا، اس کے چاروں طرف آفریدیوں کے گاؤں لگتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہاں پہ باڑہ بھی نزدیک لگتا ہے، باڑے سے افغانیوں کو لے آئیں گے، ان کو کہیں گے کہ بھائی اگر اچھا ٹائم رکھا گیا، پہلے شام کا ٹائم تھا، پھر انہوں نے کہا جی سردی ہے شام کو لوگ نہیں نکلیں گے، 12 بجے کا ٹائم رکھا گیا۔ 12 کیا 1 بجے تک 100 بندہ بھی اکٹھا نہیں ہوا۔ پھر مسجدوں سے اعلان کروایا گیا کہ جو افغانی یہاں پہ موجود ہیں وہ فوراً جلسہ گاہ میں پہنچے، وزیر اعلیٰ ان کے بارے میں انتہائی اہم اعلان کریں گے اور خوشخبری دیں گے۔ پھر بھی کوئی نہیں نکلا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو تورخم کا بارڈر ہے اس پہ جو ٹریلے کھڑے ہیں سامان کے لدے ہوئے، بارڈر بند ہے تو وہاں پہ کھڑے ہیں، وہاں پہ ان سے رابطہ کیا گیا تو انہیں کہا گیا کہ بھائی اہم اعلان کرنے لگے ہیں وزیر اعلیٰ سرحد کھولنے کے بارے میں، آؤ۔ انہوں نے کہا کھل گئی تو ہم چلے جائیں گے، نہیں تو پھر کھڑے ہیں ادھر، ہم تو نہیں اپنی گاڑیاں چھوڑ کے آتے ہیں یہاں سے۔ پھر انہیں لالچ دی گئی کہ 2000 فی بندہ دیا جائے گا، تو پھر انہوں نے کیا کہا، ڈرائیور تو کہا انہوں نے ہم نہیں جائیں گے، ہمارے کنڈکٹروں کو لے جاؤ، ان کو 2000 فی بندہ دے دو۔ اس طرح 2000 فی بندہ دے کے انہوں نے 1500 بندہ اکٹھا کیا۔ اس گراؤنڈ میں، جس گراؤنڈ میں جلسہ تھا نا، وہ گراؤنڈ تھا فٹ بال کا، وہاں پہ ٹوٹل کیپیسٹی تھی 5000، 4000 سے فل کیا جائے تو 5000، تو 5000 بندہ اکٹھا نہیں ہو سکا، ان سے 1500، 1400، 1500، 1200 سے 1500 تک بندہ تھا۔ تو اس بری طرح ان کی اپنی حکومت میں یہ جلسہ ناکام ہوا ہے۔ اور اب سوچنا چاہیے ان کو کہ بھائی عوام میں اب میڈیا نے شعور پیدا کر دیا ہے۔ میڈیا میں وہ پنجاب کو دیکھتے ہیں، پنجاب میں فری بسیں چل رہی ہیں، عام بندے سے
किराया 20 रुपये लिया जा रहा है, बुजुर्गों का बिल्कुल फ्री, तालिब इल्म जो बसों के साथ लटक लटक के जाते थे अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में इज्जत के साथ अंदर बैठ के एसी वाली हीटर वाली बस में बिल्कुल फ्री स्कूलों को जा रहे हैं। तो फिर उनमें भी शऊर तो पैदा होता है ना, इसी तरह देखा देखी मीडिया ने शऊर पैदा कर दिया। अब उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया इनको कि भाई 13 सालों में ये बस एक ही अराग लाप रहे हैं, इमरान को बाहर निकालना है, इमरान को बाहर निकालना है। वो भाई कैसे निकालना है, उसको तो 14 साल सजा हुई है, उस पर तो करप्शन साबित हो चुकी हुई है, वो बाकायदा करप्शन साबित होने पे उसको सजा सुनाई गई है और उसकी बीवी भी 7 साल के लिए अंदर है। दोनों मियाँ बीवी ये 190 मिलियन पाउंड उनकी करप्शन पाकिस्तानी किसी एजेंसी ने नहीं, इंग्लैंड की बेस्ट क्राइम एजेंसी ने पकड़ी है, तो उसमें उसको सजा हुई है, तो वो कैसे बाहर निकल सकता है? इस तरीके से अगर वो बाहर निकलना शुरू हुआ तो फिर जेल में तो एक भी मुजरम ना हो। और अब देखें इन तमाम पीटीआई के लोगों के नाम, अच्छा बुरी तरह ये इनका जलसा नाकाम हुआ है और जलसे में जो गाली गलोच इन्होंने पंजाबियों को किया ना, हम फिर भी पंजाबी उन्हें सिद्ध के दिल से माफ़ करते हैं। और यहाँ पे जो पठान रहते हैं ना, हम उन्हें पहले भी सीने से लगाया है और जो आने वाले हैं ना दौर, उसमें भी इंशाअल्लाह कोई भी पंजाबी ना किसी बलोच के से नफरत करेगा, ना किसी पठान से नफरत करेगा, ना किसी सिंधी से। हम क्योंकि हम सब एक है, ये पंजाब सबका है, इसी तरह केपीके भी सबका, किसी के बाप की जागीर नहीं है। जो ये समझते हैं ना हमारे बाप की जागीर है, तो किसी की बाप की जागीर नहीं है, ये पूरे मुल्क का हमारा है, हम सबका है। हम इसमें पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, पठान भी हैं, बलोच भी हैं, ये हम सब का पूरा मुल्क है। वो हर सूबे पे दूसरे बंदे का उतना ही हक है जितना कि उस सूबे में रहने वालों का है। तो इसलिए ये सूबाई कार्ड मत खेला करें, पठान कार्ड मत खेला करें, इसमें आप आवाम जानसे में नहीं आएगी तुम लोगों के। और अब देखें किस तरीके से किया गया है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि उनको लगाया गया है इस चीज़ पे कि, और उसी का रिजल्ट निकला है। बाहर जो यूट्यूबर बैठे हुए थे ना, उनको वापस लाने के लिए मोहसिन नकवी साहब इंग्लैंड पहुंच चुके हुए हैं, उसमें वापस उनको लाया जाएगा। आदिल राजा जैसे गद्दार को वापस ला के निशाने इबरत बनाया जाएगा और इमरान रियाज को वापस ला के निशाने इबरत बनाया जाएगा। मोईद यूसुफ को वापस ला के निशाने इबरत बनाया जाएगा और जबरान अलियास को वापस ला के निशाने इबरत बनाया जाएगा। इसके अलावा शहजाद अकबर जैसे कादियानी कुछ नहीं कहता हूँ, बस को ला के निशाने इबरत बनाया जाएगा। और इसके अलावा जितने भी बाहर बैठे हुए हैं मुल्क दुश्मन, उनको इंशाअल्लाह उनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। तो जो पीटीआई के अहम तरीन बड़ी लीडरशिप जितनी भी थी ना, सब के नाम इस सीएल में डाल दिए गए हैं, इमरान समेत। कोई भी इंशाअल्लाह मुल्क से भाग नहीं सकेगा, मुल्क से बाहर नहीं जा सकेगा। तो आप देखें किस तरीके से इनको इनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए बड़ी तेज़ी के साथ अदालतें काम करेंगी, दिन रात काम होगा। और एक बात और बता दूं कि फैज़ हमीद का केस इंशाअल्लाह वो फैसला जुम्मे वाले दिन आ जाएगा और एक और जुम्मा पीटीआई के लिए बारी होगा और उसके फ़ौरन बाद इमरान का भी कोर्ट मार्शल शुरू हो जाएगा। इसका भी कोर्ट मार्शल होगा 9 मई के वाक़यात में, ये बराह रास्त मुलव्वस है, इसका होगा। और इसकी तीनों बहनें भी मुलव्वस हैं, उनका भी होगा, उनका भी बाकायदा आर्मी में कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनको भी सजा दी जाएगी। कोई भी
चाहे मर्द है चाहे औरत है, बच नहीं सकेगा 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलव्वस है। राजा बिशारत हो गया, राजा नासिर हो गया, इन समेत कोई भी 9 मई के वाक़यात में जितने भी मुलव्वस हैं, इंशाअल्लाह इनमें से कोई भी बच नहीं सकेगा। कोशिश करें कि अब आर्मी ने कंट्रोल, एफसी ने कंट्रोल जेल का संभाल लिया है। अब जेल के बाहर या इस्लामाबाद की तरफ जो भी यूथ क्या आएगा ना, उसको निशाने इबरत बना दिया जाएगा। अब अदालत ने वो लिहाजदारी, जो प्यार मोहब्बत था ना, वो ख़त्म कर दिया है। अब असद कैसर और वो कह रहे हैं कि हम जी मुज़ाकरात चाहते हैं। अब गवर्नमेंट ने कह दिया कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब डंडा होगा और तुम लोग होगे। जब मिन्नतें कर रही थी गवर्नमेंट, रियासत मिन्नतें कर रही थी, उस वक्त नहीं नजर आ रहा था इनको कि रियासत सबसे पावरफुल होती है। तो इनको बार बार कहा गया कि भाई ऐसे नहीं होता है। ये देखें, पीपल्स पार्टी आती थी तो नून लीग उसको टाइम देती थी, अगली मरतबा वो उनकी कारकर्दगी देख के तो अवाम फिर उनको नहीं, नून लीग को वोट देती थी। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं किया था कि भाई हम इसकी हुकूमत नहीं चलने देंगे या मुल्क तबाह कर दो, मुल्क जला दो। वो शिदात अली पिंडी का मसली जो कहता था कि मुल्क तबाह कर दो, मुल्क बर्बाद कर दो। तो अब ऐसे नहीं होगा। अब इंशाअल्लाह इस मुल्क में जो भी कानून नाफज होगा, अब जजों को भी निशाने इबरत बनाया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इंसाफ का मयार देखें। उनको लालच दे के, गरीब लोग थे वो, जो 2 औरतें वो जज के बेटे ने फड़का दी थी, अब वो जमानत पे बाहर आ गया। क्यों भाई, किस तरीके से चलें? उन्होंने राजनामा कर दिया, उसमें ठीक है, जमानत हो गई। जो बगैर लाइसेंस के नाबालग बच्चा 16 साल उम्र उसकी गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो केस तो चलना चाहिए ना। कुछ नहीं होगा। ये यहाँ पे इंसाफ है। यहाँ पे इंसाफ सिर्फ कमजोर के लिए, ताकतवर के लिए इंसाफ कोई नहीं है। ताकतवर के लिए इंसाफ है, गरीब के लिए इंसाफ नहीं है। तो अब इंशाअल्लाह बहुत तेजी के साथ ये जज भी सारे अपने, करप्ट जज भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। और वो जज साहब की गाड़ी भी 2 नंबर निकली। ये हाल है इन जजों का। वो गाड़ी भी जो है ना, नॉन कस्टम निकली है। कौन पकड़े भाई? वो खुद जो इंसाफ बेच रहे हैं उनको कौन पकड़ेगा? तो इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।